A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. You know very well in the last few videos we discussed a lots of numerical topic related to the chapter number 13 depreciation. You know very well we discussed firstly the two important method of depreciation, that is the straight line method and written down value method. Thereafter we could understand the format of machinery account and the depreciation account. Thereafter, we solve the numerical problem related to the preparation of machinery account and depreciation account and the sale of the assets as well as the calculation of profit or loss on such assets. You know very well in the last few videos we discussed there are basically two methods of recording depreciation. The first method in which we charge the depreciation directly to the assets account, and in this situation we could prepare only two accounts, that is assets account and depreciation account. But when we are talking about the second method of depreciation, that is written down value method, we find that is we could not charge the depreciation directly to the assets account. The annual depreciation will be charged to the specific account which are known as the provision for depreciation account instead of assets account. So in this situation we have to prepare three accounts. The first machinery account, second provision for depreciation account, and third is depreciation account. In the last video we also discussed a new topic, that is asset disposal account. You know very well the asset disposal account is an account which are prepared to deal the sale of the assets, whether there is a compulsion of preparation of provision for depreciation account or there is a no compulsion of the preparation of the provision for depreciation account. So लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हम लोगों ने तीन अकाउंट प्रिपेयर किया था. द फर्स्ट वन इज अ मशीनरी अकाउंट, सेकंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड थर्ड वन इज अ एसेट डिस्पोजल अकाउंट. सो हम लोग एसेट्स में हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे बैलेंस करते थे. दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हर साल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे. और एसेट डिस्पोजल अकाउंट कब बनाना पड़ा? एट द टाइम ऑफ द सेल. जब हम एसेट्स को सेल की करने की बारी आई, व्हेन वी सोल्ड दीज एसेट्स, सो उस एसेट्स की सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट वी विल टेक फ्रॉम द एसेट्स अकाउंट. फिर यानी आफ्टर दैट we take the accumulated depreciation on such assets from the provision for depreciation account, and thereafter we record the sale of the assets, and now we will calculate the profit or loss on the sale of the assets. Today we will again solve a numerical problem related to the assets account, provision for depreciation account, and asset disposal account. And the special thing of that question is that the special thing about this question is that this question is generally asked in the examination, because this question have to check the knowledge about the assets account, provision for depreciation and asset disposal account, and such kind of the question takes less time as compared to the last question. So for the examination purpose, this kind of the question is important for us, for you and for me. So please solve this question very carefully, and please solve all the question given in your exercise related to this topic. Please solve it. And you know very well, if you have any doubts, so please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. So let's take the question and solve it. Because in this question we have to prepare the assets account, provision for depreciation account and asset disposal account for a particular 1 year. सिर्फ एक साल के लिए हमें अकाउंट बनाना है, बट वो एक साल के अकाउंट में एग्जामिनर आपकी सारी नॉलेज चेक कर लेगा कि यू हैव इनफ नॉलेज अबाउट दी एसेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट और नॉट. यानी आपको इन सारे अकाउंट्स के साथ डील करना आता है या फिर नहीं आता है. So let's we start this question before taking any kind of delay.
So let's go. Please be ready. The question given on your screen is that the following balance appear in the books of Crystal Limited on 1st January 2015. That is a machinery account 15 lakh and provision for depreciation account is 5 lakh 50,000. So you know very well, first of all we prepare the format of machinery account and provision for depreciation account. So first of all we prepare the format of machinery account. What is the format of machinery account? The format of machinery account are as follows. Date, particular amount, date, particular amount. And the second format is also related to the provision for depreciation account. That is provision for depreciation account. The format are as same as date, particular amount, date, particular amount. Okay, so the first information given in your screen, that is okay, that is balance on 1st January 2015. Yes, so 2015 January 1. Okay, what is the information? Balance in machinery account to balance BD. The opening balance shown as the to balance BD 15 lakh, and the second information, that is provision for depreciation account balance on January 2015 by balance BD, that is 5 lakh 50,000. That clear? ओके, अब बाकी सारी चीजें छोड़ के आपने फॉर्मेट देख लिया, फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया. सो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लेट्स वी टेक इट. According to the question says that on 1st April 2050, the machinery which was purchased on 1st January 2012 for rupees 2012 for rupees 2 lakh was sold for 75,000. A new machinery was purchased on 1st July 2015. यानी आपको करना क्या है? 1 अप्रैल 2015 को एक मशीनरी थी जिसे आपने खरीदा कब था? 1 जनवरी 2012 में खरीदा था. कितने में खरीदा था? फॉर रुपीज 2 लाख. ओके, एंड वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 75,000. आपने उसे 75,000 में सेल कर दिया. यानी 1 अप्रैल 2015 को आपने एक मशीनरी सोल्ड कर दी. कितने की मशीनरी सोल्ड कर दी? 2015 अप्रैल 1 को आपने उस मशीनरी को कहां सेल कर दिया? आपने 2 लाख रुपीस की कर दी थी. पूरी 15 लाख की नहीं थी, ओनली 2 लाख रुपीस की मशीन 75,000 में सोल्ड कर दिया. यस सर. एंड अ न्यू मशीनरी वाज परचेज ऑन 1st जुलाई, और एक नई मशीनरी आपने परचेस कर लिया जुलाई 1 टू बैंक. एक मशीनरी और आपने परचेस कर ली. कितने में परचेस कर ली? दैट इज 6 लाख रुपीस की. ओके सर. यानी फर्स्टली 1 अप्रैल को हमने मशीनरी सोल्ड की और जुलाई 1 को मशीनरी परचेस कर ली. दैट इज अ सेकेंड मशीनरी. ओके. डेप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 20% पर एनम. यानी डेप्रीशिएशन का जो रेट है वो है आपका 20% पर एनम से. वो भी किस मेथड से? एसएलएम मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड, दैट इज द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर. बुक कब क्लोज होना है? 31 दिसंबर में. आपको कौन कौन सा अकाउंट बनाना है? यू हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, and only two account, machinery account, provision for depreciation account for the year ending 31st December 2015. यानी 2015 का डेप्रिशिएशन 2015 तक का आपको अकाउंट बनाना है. सिर्फ दो अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट. क्लियर हो गया? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो. अब मैं ये क्वेश्चन हटाने जा रहा हूं, अब सॉल्व करने जा रहा हूं. अब देखो सॉल्यूशन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक
जनवरी 2012 को आपने जो मशीनरी खरीदी थी कितने में, 2 लाख रुपए में, आप 1 अप्रैल 2015 में बेच रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड करोगे कि उसकी आज की कॉस्ट क्या होगी। सो पहले तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। सो फर्स्टली यू विल चार्ज द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज January 1 टिल द डेट ऑफ सेल। सेल कब हो रहा है, April 1 में। डेप्रिसिएशन साल चार्ज करो, कितने की मशीनरी बेच रहे हो, टोटल तो 15 लाख की बेच नहीं रहो, तो उसमें से कितने की मशीनरी बेच रहे हो, 2 लाख वाली। तो 2 लाख की मशीनरी बेच रहे हो, कितना परसेंट, 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट है, और कितने महीने के लिए, यू विल काउंट इट, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल तो खुद ही है, 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। 2 लाख का 20%, 3 मंथ्स का दैट इज 40,000, दैट इज 10,000। ओके, सो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। यू नो वेरी वेल, सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एंड देयर आफ्टर यू नो वेरी वेल एट द टाइम ऑफ सेल आप उस पर क्या करते हो, उसका उस एसेट से रिलेटेड जितना भी डेप्रिसिएशन है, दैट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ द सेल। द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेफ्ट ऑन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट रिलेटेड टू द sold assets, related to the sold assets is to be transferred to the machinery account। यानी जिस एसेट्स को आप सोल्ड कर रहे हो, एसेट कितने की सोल्ड कर रहे हो, 2 लाख वाली सोल्ड कर रहे हो, 2 लाख वाली सोल्ड कर रहे हो ना। अब आप खुद देखो, 2 लाख वाली एसेट्स थी जिसे आप कब खरीदे थे, आप खरीदे थे 1 जनवरी 2012 में, आप उसको बेच कब रहे हो, 1 अप्रैल 2015 में। तो 1 जनवरी 2012 से लेकर 1 अप्रैल 2015 तक का जो डेप्रिसिएशन है उस एसेट्स पे, वो सब उठकर कहां चला जाएगा, एसेट्स अकाउंट में, दैट इज टू मशीनरी अकाउंट। और ये यहां शो होगा ऑन April 1 2015 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दैट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द परचेज ऑफ द एसेट्स टिल द डेट ऑफ द सेल। सो यू कैन सी दैट कंपनी फॉलो द कैलेंडर ईयर। आप इस क्वेश्चन में देखा था कि बुक कब क्लोज हो रही थी, बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। बुक क्लोज हो रही थी कब, 31 दिसंबर में क्लोज हो रही थी, हो रही थी, यस सर। तो अगर आप जनवरी 1 जनवरी को परचेस किए हो, तो पहला ईयर कब हुआ होगा, 12, दूसरा ईयर 2013, तीसरा ईयर 2014, और 15 में तो केवल कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगा है, 3 महीने का, दैट इज 10,000। वो तो क्लियर है। यानी 3 साल का डेप्रिसिएशन आपको और कैलकुलेट करना है, फॉर द ईयर 2012, फॉर द ईयर 2013, फॉर द ईयर 2014, क्योंकि खरीदे कब हो, जनवरी 2012, तो 2012 का साल, 2013, 2014, इट मीन 3 साल का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। और बाकी जो 2015 वाला डेप्रिसिएशन है वो तो आप कैलकुलेट करके बैठे हुए 10,000 रुपए आएगा, क्योंकि पूरा साल तो एसेट को यूज नहीं किया, सिर्फ कितने दिन आपने एसेट को यूज किया, यू विल यूज सच एसेट्स फॉर ओनली 3 मंथ्स, तो 3 महीने का आप डेप्रिसिएशन निकाल के रखे हुए। तो यू कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन 20% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो 2 लाख की एसेट्स है, 20% 1 साल का डेप्रिसिएशन है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 40,000। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन क्या है, कितना आएगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन फॉर द 3 ईयर, 12, 13, 14 मल्टीप्लाइड बाई 3, that is 1,20,000. So the accumulated depreciation of the particular asset, that is 1,30,000. How, 12, 13, 14 3 साल का डेप्रिसिएशन आएगा 1,20,000 अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड, और 10,000 रुपए इसका। The accumulated depreciation 1,30,000, 1,20,000 plus 10,000 equals to 1,30,000, and it will be transferred to this account. यस सर, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, इसको आप नोट कर लेना। आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, और बहुत ही इजी वे में कैलकुलेट किया, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सब चीजों के लिए। ओके, प्लीज नोट डाउन इट। 2 लाख पे 20% के रेट से डेप्रिसिएशन लगता है और द ईच ईयर। ओके, एंड 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया आपका कितना, 40,000। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा सर, 1,20,000। 3 साल का डेप्रिसिएशन 1,20,000 प्लस 3 महीने का और डेप्रिसिएशन, क्योंकि लास्ट ईयर यानी आप 2015 में कंपनी ने कितने दिन मशीनरी को यूज किया,
मशीनरी विल बी यूज्ड फॉर 3 मंथ्स, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन 1,30,000 हो गया। अब नाउ हमें क्या करना है सर, we should calculate the amount of sell, कितने में मैंने एसेट्स को सोल्ड किया। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹75,000, सो बाय बैंक 75,000 में आपने सेल कर दिया। यस सर, इसको आप रफ कर दो। आप क्या करेंगे सर, आप कैलकुलेट करो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यस सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, that is 2 lakh. What is the accumulated depreciation on this year, this assets 1,30,000, so उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी 70,000। सेल कितने में हो गया 75,000। क्या हो जाओगे आप, खुश हो जाओगे। क्यों खुश हो जाओगे, बिकॉज ऑफ 70,000 की एसेट्स कितने में सेल हो गई 75,000, सो दिस इज अ प्रॉफिट। एंड यू नो वेरी वेल, जब किसी एसेट्स के सेल पे प्रॉफिट होता है तो इट विल बी रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द मशीनरी का और पर्टिकुलर एसेट्स का। ओके, यस सर, 5,000 प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया। नाउ अब क्या करना होगा सर, अकाउंट क्लोज करना है, बिकॉज यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दिसंबर 31, 2015 तक का अकाउंट बनाना है। सो हम लोग पहले बैलेंस निकालेंगे 2015 दिसंबर 31 का बैलेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, डेबिट टोटल करो 115 लाख 6 लाख 5,000, दैट इज 21 लाख 5,000। इधर भी कितना आना चाहिए 21 लाख 5,000 आना चाहिए। ओके, बट इधर बैलेंस कितना आ रहा है, ओनली 1,30,000 प्लस 7,50,000, 21 लाख 5,000 minus 75 minus 2 lakh 5,000, so we have a machinery of rupees 18 lakh. Okay, sorry, 19 lakh, so the balance is 19 lakh. सर इसका और कोई इजी तरीका है, यस, बैलेंस करने का एक और इजी तरीका है। यू कैन सी दैट पहले बार हमारे पास कितने की मशीनरी थी 15 लाख प्लस 6 लाख और खरीदा, तो टोटल मशीनरी कितनी हुई 21 लाख रुपीस की। टोटल मशीनरी हो गई 21 लाख रुपीस की, हमने उसमें से कितने की मशीनरी सोल्ड आउट कर दी है 2 लाख की, तो मेरे पास कितने की मशीनरी बची होगी 19 लाख। यस सर, ये आसान तरीका था। अब इस अकाउंट को भी तो क्लोज करना पड़ेगा, यस सर, बट यू नो वेरी वेल बिफोर द क्लोजिंग ऑफ दिस अकाउंट यू विल टेक अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर माइंड। इस अकाउंट को, ये बहुत डेंजर अकाउंट है, उसको ऐसे ही क्लोज नहीं करना है। 2015 दिसंबर 31 को जब इस अकाउंट को आप क्लोज करोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे। डेप्रीशिएशन यहाँ पे कितनी मशीनरी हो गई, यू हैव अ 2 मशीनरी। फर्स्ट मशीनरी यू नो वेरी वेल 15 लाख की थी, जिसमें से 2 लाख की आपने बेच दिया। 15 लाख में से आपने कितने की मशीनरी बेच दिया 2 लाख की। ओके, सो यू नो दैट कि पहले आपके पास 15 लाख रुपए की मशीनरी थी, जिसमें से आपने 2 लाख की मशीनरी सोल्ड कर दी, तो आपके पास कितने की मशीनरी बची 13 लाख। उस पर कितने का डेप्रिसिएशन लगाओगे एट द रेट ऑफ 20%, सो द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन 2,60,000। एंड नाउ द सेकेंड मशीनरी यू नो वेरी वेल, सेकेंड मशीनरी कितने की थी 6 लाख। 6 लाख का कितना परसेंट है 20%, बट फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फॉर 6 मंथ, सो दैट इज 60,000। सो आप यहां पे भी टोटल करोगे इसका भी, इधर टोटल कितना आ रहा है 5,50,000 प्लस 10 560 एंड 260 एंड 60 320, टोटल इज 880 एंड इधर कितना है 130, माइनस कर दो, दैट इज 7,50,000. So the balance in provision for depreciation account is 7,50,000 on December 31st 2015, because company follow the accounting year, and the total of debit and credit side is 8,80,000.
Okay, so we could find all the accounts at one place, and this is a solution of this question. And such kind of the question, most of the examination, such kind of the question asked by the examiner कि आपको सिर्फ दो ही अकाउंट प्रिपेयर करने हैं या तीन अकाउंट, सपोज इसके साथ एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी ऐड होता, सपोज कंपनी को एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ता, मैं प्रिपेयर कराता इसी के साथ, बट ड्यू टू द सम काइंड ऑफ लिमिटेशन, यू नो वेरी वेल, दिस इज ऑनलाइन क्लास, दिस इज नॉट ए ऑफलाइन क्लास, सो वी कुड नॉट टेक अ प्रॉपर स्पेस। हम चाहते तो यहीं पर आपको ऐसे डिस्पोजल अकाउंट भी बता सकते थे, बट पॉसिबिलिटीज नहीं है ड्यू टू द लिमिटेड स्पेस, इतने बड़े बोर्ड्स पे भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। बट when any question asking about the preparation of machinery account and provision for depreciation for the single year, और single year में you can see that आपने एक नई मशीनरी भी खरीद ली, आपने एक एसेट्स को सोल्ड आउट कर लिया, फिर जितनी एसेट्स बची उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया, फिर आपने दोनों अकाउंट को प्रॉपरली बैलेंस भी कर लिया। सो इन दिस होल चैप्टर, आपने इस पूरे चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन, आप पहले इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ वी विल मूव टू द कंक्लूजन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डेप्रिसिएशन। ओके, सो आपने देखा इन दिस होल चैप्टर दैट इज डेप्रिसिएशन, वी सॉल्व अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। ओके, सो इसमें आपने कुछ पॉइंट्स आपको मैं नोट करा देता हूं जो आप अपने रिवीजन के टाइम याद रखना कि इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। द फर्स्ट वन, दैट इज अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, because today is the last class of this chapter, that is depreciation, the chapter number 13. So you can see that first of all the numerical part के लिए इस chapter में numerical part के लिए सबसे important topic है, that is method of depreciation. They are basically two methods, that is SLM method and written down value method. Question दोनों में से किसी भी एक method से आ सकता है। Question is asking by the straight line method or the DBM method. The second topic which are covered by us in this chapter, that is preparation of assets account and depreciation account. हम लोगों ने assets account और depreciation account prepare करना सीखा, how we will prepare the assets and depreciation account. और थर्ड हम लोगों ने सीखा numerical problem related to सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को सेल करने पे कैसे हमें उसको डील करना है, ये प्रॉब्लम उन्होंने सीखा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सेल ऑफ एसेट्स। और ये दोनों ही मेथड से सीखा हम लोगों ने। अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहे हैं तो हम एसेट्स को सेल करते समय क्या क्या पॉइंट आउट करेंगे, क्या क्या चीजों को पे फोकस करेंगे, एज वेल एज जब हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो करेंगे तो भी हम कैसे एसेट्स को सेल करके उस प्रॉब्लम को डील आउट करेंगे, उस पर भी हम लोगों ने कंसीडर किया। नंबर 4, दैट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू परचेज ऑफ मोर देन वन एसेट्स। ये भी मैंने आपको टॉपिक बताया, यहां तक कि मैंने थर्ड और फोर्थ पॉइंट दोनों मिक्स करके मैंने आपको बताया। द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द परचेज ऑफ मोर देन वन एसेट्स, यानी क्वेश्चन होता था उसमें आप कई सारी एसेट्स परचेज करते थे और एक एसेट्स को सोल्ड आउट कर देते थे, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हम फॉलो करें चाहे डीबीएम मेथड फॉलो करें। सो हम उस सिचुएशन में कैसे डील आउट करेंगे, कैसे एंट्रीज पास करेंगे, इस पर हम लोगों ने फोकस किया इस पूरे चैप्टर में। एटलीस्ट वी फोकस सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विच गिव्स द पॉइंट नंबर 3 एज वेल एज द पॉइंट नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल एसेट्स भी परचेस की और एसेट्स को सोल्ड आउट भी किया। और कभी कभी तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां हम पूरे एसेट्स को सोल्ड आउट नहीं करते थे, द पार्ट ऑफ द एसेट्स, यानी पूरे एसेट्स को सोल्ड आउट ना करके उस एसेट्स का कुछ पार्ट हम सोल्ड आउट करते थे। उस तरह की जर्नल एंट्रीज भी हम लोगों ने पास की।
The number fifth, methods of recording depreciation. हम लोगों ने डिस्कस किया द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन. इसका जो फर्स्ट मेथड था दैट इज डेप्रिसिएशन चार्ज डायरेक्टली टू द डेप्रिसिएशन, डायरेक्टली टू द एसेट्स अकाउंट. वो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ये पूरा टॉपिक उसी से रिलेटेड था. द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन दैट इज related to the first method, that is depreciation charge to the assets account. But in the second method we take the knowledge related to the preparation of provision for depreciation account. हम लोगों ने provision for depreciation account prepare करना सीखा. यानी after the considering this point हमें ये knowledge मिली कि सिर्फ assets पे depreciation नहीं लगता, कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जहां पे डेप्रिसिएशन जो है के लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. सो हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सीखा. उसी में हम लोगों ने कुछ मिक्सअप पॉइंट डिस्कस किए, जैसे कि हम लोगों ने उसी से रिलेटेड डेप्रिसिएशन और एसेट्स अकाउंट बनाना सीखा. हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किया रिलेटेड टू द सेल ऑफ एसेट्स, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड से हो चाहे डीबीएम मेथड से हो, एज वेल एज हमने मल्टीपल एसेट्स भी परचेस किए. सो हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना भी सीखा विथ टेकिंग ऑल द पॉइंट्स इनटू द कंसिडरेशन. यानी सारे पॉइंट्स हम लोगों ने ध्यान में रखे. ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखा, हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाने के साथ साथ हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को कवर आउट किया. उसके साथ हम लोगों ने एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर किया, उसके साथ साथ हम लोगों ने एसेट्स को सोल्ड भी किया उस पोर्शन में. उस पोर्शन में हम लोगों ने एक से ज्यादा बार एसेट्स को परचेस भी किया. अभी देख लो खुद ही, अभी हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था, उसके साथ एसेट्स अकाउंट में यू कैन सी दैट हमने एसेट्स को सोल्ड आउट भी किया और एसेट्स को परचेस भी किया. सो ये भी तो एक तरह की नॉलेज आपको मिल रही है इस चैप्टर से. नंबर 6 टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट. ये मैं समराइज इसलिए कर रहा हूं बिकॉज जब आप रिवाइज करोगे इस चैप्टर को, बिकॉज इन दिस चैप्टर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो. सो ये टॉपिक अगर आप अपने पास समराइज करके रखे रहोगे एंड रिवीजन के लिए अगर हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन भी निकाल के सॉल्व कर लिया तो यू विल गेट अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर. So when we are talking about the asset disposal account, so you know very well, when we are talking about the asset disposal account, so there are basically two situations when asset disposal account are open. The first, when provision for depreciation account are not maintained, and number two, when provision for depreciation account are maintained. यू नो इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किया है कि हमने एसेट डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर किया है और एसेट डिस्पोजल अकाउंट के दो सिचुएशन होती है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन. और दोनों केसेस में क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी इस पे भी हम लोगों ने पॉइंट आउट किया. ओके, सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट. एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज अ स्पेसिफिक अकाउंट व्हिच आर ओपन एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द एसेट्स एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन. सो इन दिस सिचुएशन एसेट्स की जो बुक वैल्यू होती है उसे हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और फिर एसेट्स को सोल्ड आउट करके उसकी प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं. बट इन केस ऑफ व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, सो इन दिस सिचुएशन we take the book value from the assets account into the asset disposal account and thereafter we take the accumulated depreciation account from the provision for depreciation account. यानी assets account से book value ओरिजिनल कॉस्ट लिया assets का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से क्या ले लिया, यस गुड, हमने क्या ले लिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिर उसके बाद सेल आउट करके उसकी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर दी. सो दे आर बेसिकली 7 टॉपिक एंड इसके साथ एक 8 टॉपिक है जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एसेट्स अकाउंट फॉर 1 ईयर. यानी 1 साल के लिए हम लोगों ने एसेट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया. Okay, so please list out all these 6 topic in your copy which helps to understand the chapter number 13 that is depreciation. And जब भी आप रिवीजन करने बैठिएगा, when you revise this chapter you will get
all the information related to this chapter, that is the chapter number 13, depreciation. In the next video, we will come to introduce a new chapter of class 11th accountancy. So I hope today we cleared all the topics very easily, and I requested to all the students, please solve the exercise question given in the book. Okay, so thank you, thanks a lot.